Yes, students, let us start doing exercise 5.2. 5.1 we have completed yesterday. So now we are going to start with exercise 5.2. 5.2 exercise start करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए what are intersecting lines. Intersecting lines क्या होती हैं हमारी? You must have done types of line in previous class. हमने different types of lines करी हैं जिसमें हमने पढ़ा है perpendicular lines, parallel line, intersecting lines. So intersecting lines क्या होती हैं? Which have a common meeting point, which intersect at a common point like this. For example, we can take letter Y. लेटर वाई जब हम बनाते हैं तो उसकी जो टू लाइन सेगमेंट्स होती है दे इंटरसेक्ट एट अ कॉमन पॉइंट. ठीक है, जो एक दूसरे को कट करती है एक कॉमन पॉइंट पे उसको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस क्या होती है हमारी? द लाइंस विच आर एट अ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. राइट, the lines having equal distance from each other, जो एक दूसरे से equal distance पे होती हैं. For example, we can take the example of a railway track. जो railway track की दो lines होती हैं वो बिल्कुल parallel होती हैं. If you have observed it, ठीक है. अगर हम बोर्ड की टॉप वाली लाइन और डाउनवर्ड लाइन देखें तो they are also at a equal distance from each other. So they are also parallel lines. Next, let us discuss about a new line which is named as a transversal. Transversal क्या होती है हमारी? Suppose हमारी two lines जा रही हैं. We are having two lines. Transversal is a line which intersect the two lines at different distinct points. Suppose ये two lines जा रही हैं, one is going here, other is going here. Transversal क्या करती है? इन दोनों lines को ऐसे कट करती है at distinct points. Clear? So the line which intersects two or more lines at distinct points is called as the transversal. Clear? समझ में आ गया कि transversal क्या होती है हमारी? Now let us discuss about the angles made by this transversal. इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं. जैसे अगर हमने रेलवे ट्रैक देखे हैं तो हम कई बार ट्रैक्स में देखते हैं कि एक ट्रैक जा रहा है और उसी में एक और ट्रैक ऐसे मर्ज हुआ है. सो दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसवर्सल, जिसने एक ट्रैक को पूरा ऐसे क्रॉस किया डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे फॉर द क्रॉसिंग ऑफ द ट्रेन्स. राइट, सो दिस इज द ट्रांसवर्सल विच intersect two lines at distinct points. Now let us study about the angles made by the transversal. ये जो transversal होती है ये कुछ angles बनाती है. So see here, one is, suppose हम angles तो हमें दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से बन रहे हैं हम नेम दे देते हैं इनको. 1 angle, 2 angle, 3 angle, 4 angle, 5 angle, 6 angle, 7 and angle 8. हमने इन एंगल्स को नेम दे दिया कि जितने एंगल्स इस ट्रांसवर्सल ने बनाए हैं वी हैव गिवन नेम्स टू दोज एंगल्स. नाउ अब हम इनको डिवाइड करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स में. फर्स्ट इज, ये जो हमारे एंगल्स हैं जो दोनों लाइंस के अंदर बन रहे हैं 3, 4, 5 and 6. ठीक है, ये क्या है? These are interior angles. So firstly we will write the pair of interior angles. कौन कौन से हैं interior angles? Angle 3, angle 4, angle 5, angle 6.
इंटीरियर मतलब जो अंदर एंगल्स बन रहे हैं, these are called as the interior angles. Next is exterior angles. exterior angles कौन से होंगे हमारे? exterior angles जो बाहर बन रहे हैं दोनों लाइन्स के, 1, 2, 7 and 8. Angle 1, angle 2, angle 7 and angle 8. Next is pairs of corresponding angles. Pairs of, बड़े ध्यान से समझना इसको, pairs of corresponding angles. अब pairs of corresponding क्या होते हैं हमारे? देखो इधर, exterior angle 1 and the interior angle 5. ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहे हैं एंगल्स, here and over here, these are corresponding angles. पेयर होते हैं इसमें, जैसे एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के कॉरस्पॉन्डिंग है, ठीक है, जो लाइन के टॉप पे बन रहे हैं, ठीक है, ऊपर एंगल 1 एंड एंगल 5. सो फर्स्ट पेयर इज एंगल 1 एंड एंगल 5. नेक्स्ट पेयर, एक पेयर इधर भी है, एंगल 2 एंगल 6, एंगल 2 एंगल 6. These are corresponding angles. Next is, अगर हम अभी हमने एंगल ऊपर वाले लिखे, अब जो नीचे होते हैं लाइन के, down to go towards the line, angle 3 and angle 7, angle 4 and angle 8. So angle 3, angle 7, comma angle 4, comma angle 8. So these are the 4 pairs of corresponding angles. समझ में आए corresponding angles? जो लाइन के ऊपर होते हैं, दोनों लाइन के, ठीक है? एंगल 1, एंगल 5. एंगल 1 को हम एंगल 7 नहीं ले सकते कि एंगल 1 एंगल 7 के कॉरस्पॉन्डिंग है, क्योंकि एंगल 1 तो लाइन के ऊपर है और ये लाइन के नीचे है लोग, ठीक है. सो एंगल 1 इज कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल 5, एंगल 3 इज कॉरस्पॉन्ड्स टू एंगल 7, सिमिलरली टू दिस साइड. Here, next is your pair of alternate interior angles. Pairs of alternate interior angles. पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर. अब इंटीरियर एंगल्स तो हमें पता है ये हमारे 3, 4, 5 एंड 6, लेकिन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे हमारे? एक तो दिस 3 and 6, 3 and 6, एक लाइन के इधर बनेगा, एक दूसरी साइड बनेगा, ठीक है. सो दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. एंगल 3 इज अल्टरनेट इंटीरियर टू एंगल 6, एंगल 3 एंगल 6. Next, angle 4, angle 5, angle 4, angle 5. Clear? समझ आया? Next are pair of alternate exterior angles. Exterior angles कौन से हमारे? 1, 2, 7 and 8. तो अब alternate interior, 1 is alternate to 8, 7 is alternate to 2. So 1 and 8 and 2 and 7. Clear? Next, last one is pair of interior angles on the same side of the transversal. Pair of interior angles on the same side of transversal. Pair of interior angles on the same side of transversal मतलब जो इस एक ही साइड पर है और इंटीरियर भी होने चाहिए. ट्रांसवर्सल की एक ही साइड पर होने चाहिए और वो इंटीरियर भी होने चाहिए. So 3 and 5 and 4 and 6.
6-1 pair of interior angle on same side of transversal, that is angle 3 and angle 5, angle 4 and angle 6. Clear? Now the next question is, if these lines, अगर ये जो ट्रांसवर्सल है ये टू लाइंस को कट कर रही है और वो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं. See the case? If this line transversal which is cutting the two lines at distinct points and the lines which are cut by the transversal, they are parallel. See here, अगर ये लाइंस पैरेलल हो जाती हैं और ट्रांसवर्सल इनको कट कर रही है, देन व्हाट इज द सिचुएशन? उसकी कुछ एक सिचुएशन होती है दैट द पेयर, इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, देन द पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बिकम इक्वल. ठीक है, तो हमारे जो पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल हो जाएंगे. सपोज एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे कौन से थे? एंगल 1 एंड एंगल 5. एंड तो ये हमारे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5 हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7 हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8. ठीक है, जब लाइंस पैरेलल होंगी ट्रांसवर्सल के साथ तो हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो पेयर्स हैं दे विल बी इक्वल. क्लियर? नेक्स्ट कंडीशन इज दैट if two parallel lines are cut by a transversal, each pair of alternate interior angles are equal. alternate interior angles हमारे कौन से थे? 3 and 6, 4 and 5. तो ये भी इक्वल हो जाएंगे पैरेलल लाइंस के केस में. 3 and 6, 4 and 5. ठीक है, तो alternate interior angle also become equal. If two parallel lines are cut by a transversal, then each pair of interior angles on the same side of the transversal are supplementary. क्या कह रहा है वो कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो each pair of interior angle on the same side of the transversal, यहाँ हमने लिखा था ना pair of interior angle on the same side of the transversal, that is ये ट्रांसवर्सल है, इसकी सेम साइड मतलब एक ही साइड पे जो दो एंगल अंदर बनेंगे इंटीरियर पे 3 and 5, they become supplementary. मतलब इनका जो सम होगा that is 180 डिग्री. सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 होता है ना, तो अगर लाइंस पैरेलल हैं तो इनका जो सम होगा it will become 180 डिग्री. क्लियर? I hope you understand this. ये 3 कंडीशंस होती हैं पैरेलल लाइन के केस में. सपोज अगर हमने चेक करना है कि whether the lines are parallel or not, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम अंदर वाले इंटीरियर एंगल्स को चेक कर लें, इनको प्लस करके देख लें, अगर तो हमारा सम 180 डिग्री आएगा तो मीन्स दे आर यू नो सप्लीमेंट्री एंगल्स बना रहे हैं ना इंटीरियर एंगल, मीन्स द लाइंस आर पैरेलल. क्योंकि हमने पैरेलल लाइंस के केस में ये कंडीशन पढ़ी है कि जो इंटीरियर एंगल्स होंगे दे आर सप्लीमेंट्री. इंटीरियर एंगल्स हमारे सप्लीमेंट्री होंगे उस केस में. सो नेक्स्ट इज लेट अस बिगिन विद द एक्सरसाइज 5.2. See the question number 1. Question number 1. What is there? State the property that is used in each of the following statements. Diagram. Let us draw the diagram.
यहाँ पर ए बी लिखा है ना, तो दिस इज द नेम ऑफ दिस लाइन, लाइन ए, लाइन बी। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8. What is that? Question number 1. You have to state the property that is used in each of the following. First part में क्या given है? If A is parallel to B, then angle 1 equals to angle 5. Question में बोला है कि अगर A B के parallel है, these lines are parallel, then 1 equals to 5. Angle 1 equals to angle 5. This is angle 1 and this is angle 5. तो ये एंगल्स इक्वल हैं। आपने इसकी प्रॉपर्टी बतानी है कि ये एंगल्स इक्वल क्यों हैं। अब आप डायग्राम से देख के बताओगे। एंगल 1, एंगल 5, क्या देख रहे हो, लाइन के ऊपर बन रहे हैं। एंगल 1 और लाइन 5 भी, एंगल 5 भी लाइन के ऊपर है। कौन से एंगल्स हैं? पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दैट्स व्हाई दे आर इक्वल। अभी मैंने बताया ना कि पैरेलल लाइंस अगर होती है हमारे पास ट्रांसवर्सल के साथ, तो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं, और जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल वो 180 डिग्री बनते हैं, तो दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसने आपसे प्रॉपर्टी पूछी कि ये उसे बता दिया कि एंगल 1 इज इक्वल टू 5, बट स्टेट द प्रॉपर्टी। सो द प्रॉपर्टी इज पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो आप इसका आंसर लिखोगे पेयर ऑफ corresponding angles. Next is B part, second part. If angle 4 equals to angle 6, then A is parallel to B. अगर angle 4 angle 6 के equal है, then can you say that angle A is parallel to B? So इस केस में हम क्या कहेंगे? एंगल 4 और एंगल 6 हमारे कौन से एंगल्स हैं? They are alternate interior angles. देख रहे हैं ना, एंगल 4 यहाँ बन रहा है, एंगल 6 इधर बन रहा है। इंटीरियर वाले हैं लेकिन अल्टरनेट हैं, नॉट ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। सो कौन सी प्रॉपर्टी है ये? अल्टरनेट एंड इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट इज if 4 plus 5 is 180 degree, angle 4 plus angle 5 is 180 degree, then A parallel to B. Angle 4 plus 5 ये कौन से एंगल्स हैं? एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। जब ये 180 डिग्री होते हैं तो क्या होता है? लाइंस पैरेलल होती हैं। तो कौन से एंगल्स हुए? ये प्रॉपर्टी लिखो इनकी, एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal. Clear? So students, I hope you are understood with this question. Next, let us come to question number 2. Question number 2, let us draw the diagram. Diagrams बहुत ही beautifully बनाओगे आप नोटबुक में। This is line A and this is line B and this is a transversal C. Angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, 5, 6, 7 and 8. First part, in the adjoining figure identify the pair of corresponding angles. आपने क्या करना है? पेयर्स लिखने हैं, पेयर्स ऑफ
angle 1 and angle 5, angle 1 comma angle 5, then the next pair angle 2 comma angle 6, then the next pair angle 4 comma angle 8, then the last pair angle 3 comma angle 7. समझ आए? angle 1, angle 5, 2, 6, 4, 8, 3 and 7. ठीक है? Second part. In the second part, what you have to write is the pair of alternate interior angles. Alternate interior angles कौन से होते हैं? This one, 3 and 5, 2 and 8. Angle 3, angle 5, angle 2, angle का साइन जरूर लगाओगे, comma angle 8. Third part, pair of interior angles on the same side of the transversal. Same side of transversal interior, 3 and 8, 2 and 5. Angle 3 and angle 8, angle 2 and angle 5. And the fourth, vertically opposite angles. Vertically opposite angles किया था ना हमने 5.1 में. So 2 and 4 ये क्रॉस बन रहा है ना. 2 and 4 are vertically opposite. 1 and 3, 6 and 8, 5 and 7. So write down angle 1 and angle 3, comma angle 2 and angle 4, angle 6 and angle 8, then angle 5 and angle 7. Clear? Let us do the next part. Next question. Question number 3. In the adjoining figure, P parallel to Q. What is given? Figure में आपको बताया हुआ है that P is parallel to Q. Find the unknown angles. Unknown angles find करने हैं आपने इसमें. जितने भी एंगल्स के नेम लिखे हुए हैं उनको फाइंड करना है कि वो एंगल्स कितने हैं. एंड वन एंगल इज गिवन टू यू 125 डिग्री. लेट मी ड्रॉ द फिगर फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 3. द एडजॉइनिंग फिगर. अब पैरेलल लाइंस आपकी ऐसे बनी हुई हैं, वर्टिकल. P and Q. Transversal is going like this. This is angle E, this is angle F, and this is 125. Next is, this is angle D, this is angle A, this is angle B, this is angle C. Now see here, you have to find the unknown angle. सिर्फ आपको एक एंगल पता है, आपने बाकी अननोन एंगल्स निकालने हैं. अब देखो 125 डिग्री है ये वाला एंगल. दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस D. Why? Corresponding angles. लाइंस पैरेलल है, पहले ही बोल दिया क्वेश्चन में. अब पैरेलल लाइंस होती है तो corresponding angles they are equal. So if this is 125, D is also 125. So write down angle D equals to 125 degree. Bracket में reason जरूर mention करना है. That is corresponding angles. Corresponding angles are equal. पूरा reason लिखोगे. ठीक है? अब D find हो गया 125. D is 125 degree. अब D 125 है तो B भी तो 125 होगा. वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, ये वर्टिकली अपोजिट है B के. सो राइट डाउन D इज इक्वल्स टू B, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. सो यहाँ लिखो एज D इज इक्वल्स टू B, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. सो B is also equal to 125 degree. तो हमारा B भी क्या हो गया 125 डिग्री. अब B देखो किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है किसी के कॉरेस्पॉन्डिंग?
ये वाला एंगल दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस, है ना, बट यहाँ पर तो कोई एंगल नहीं दिया हमें फाइंड करने के लिए, राइट। तो क्या करो, अब ए फाइंड करो। ए कैसे फाइंड होगा हमारा, सी हियर, वेट, ए को हम बाद में फाइंड करेंगे, पहले ये देखो यहाँ 125 है, एफ भी 125 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इक्वल होते हैं, नहीं इक्वल नहीं होते, वो 180 डिग्री का सम बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, एंगल एफ प्लस 125 डिग्री, इनको एंगल्स लगाओ साथ में, ठीक है। एंगल एफ प्लस 125 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज एंगल्स ऑन द, लिख दो, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो क्या हो जाएगा, एंगल 5, एंगल एफ इज इक्वल्स टू 180 माइनस 125, दैट इज एंगल एफ विल बी इक्वल्स टू 55 डिग्री, ठीक है। सो एंगल एफ हमारा हो गया 55 डिग्री। अब एंगल एफ 55 है तो ए भी 55 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट है, और सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सो राइट डाउन, आई एम राइटिंग इट हियर आफ्टर दिस, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल एफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, so angle A will also become 55 डिग्री, ठीक है। अब A 55 है तो C क्या हो जाएगा, A 55 हो गया ना, C भी क्या होगा 55, क्यों, वर्टिकली अपोजिट, एंगल A इक्वल टू एंगल C वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, so angle C is also equal to 55 डिग्री। अब कौन सा एंगल रह गया, ए भी फाइंड हो गया, सी भी, ई रह गया, ई किसके इक्वल होगा 55, वाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल 55 डिग्री वर्टिकली। सबका रीजन लिखोगे कि आप क्यों लिख रहे हो इसको एक बार, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्लियर, सभी एंगल्स फाइंड हो गए हमारे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन बोथ फिगर्स। You have to find the value of x in both the figures which are given. So let us see question number 4. Find the value of x. मैं एक पार्ट करवा रही हूँ आपको, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट आप खुद से करोगे। दिस इज 110 डिग्री, लाइन L, M. L is parallel to M. This is given. X. आपने X फाइंड करना है, करो फाइंड। This is 110. ये 110 है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा 110 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सो अब एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या होते हैं 180 डिग्री। सो x प्लस 110 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो एंगल x कितना आ जाएगा 180 माइनस 110, दैट इज 70 डिग्री। सेकेंड पार्ट आप खुद से ट्राई करोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ
G. What is given? ABC is 70 degree. Arms of two angles are parallel. जो दो एंगल्स की आर्म्स हैं वो पैरेलल हैं. This AB is parallel to DE, BC is parallel to EF. So you have to find angle ABC is 70 degree given. आपने क्या फाइंड करना है? You have to find DGC. Where is DGC? DGC फर्स्ट पार्ट में हमने ये फाइंड करना है DGC. ठीक है, तो अगर हमारी ये दोनों लाइंस पैरेलल हुई, दिस इज पैरेलल ना, these lines are parallel, और ये इनकी ट्रांसवर्सल अगर हम मान लें, राइट, दिस उसने क्वेश्चन में बोला AB is parallel to DG. तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए ना, ये ट्रांसवर्सल मान लो BC. सो एंगल DGC इक्वल्स टू 70 डिग्री corresponding angles as AB is parallel to DG. ठीक है, B part DEF, angle DEF, D where is DEF. This angle you have to find. Now what is that? BC is parallel to EF. BC EF के पैरेलल है और DE क्या है? ट्रांसवर्सल. तो हमें ये पता चल गया ये कितनी है? 70 डिग्री. तो ये कौन से एंगल्स हुए? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. So angle DGC is equal to angle DEF. Same reason. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कब है ये? जब BC पैरेलल टू EF है. ठीक है, सो एंगल DEF इज ऑल्सो 70 डिग्री. क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप यू आर क्लियर विद दिस. लास्ट पार्ट में आपने क्या करना है? इन द गिवन फिगर डिसाइड वेदर L इज पैरेलल टू M. अब L पैरेलल टू M है, ये आप कैसे डिसाइड करते हो? जो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है उनका सम अगर 180 डिग्री आता है तो मींस द एंगल्स आर, द लाइंस आर पैरेलल, अदरवाइज नॉट. सी हियर, मैं एक दो पार्ट बता देती हूँ आपको. जैसे देखो फर्स्ट पार्ट में ये दो एंगल्स दिए 126 एंड 44. एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इनका सम फाइंड करो. 126 प्लस 44 इज 170. 180 नहीं आ रहा, मींस नॉट पैरेलल. सेकंड पार्ट, L और M को बता रहे हैं ना हमने, तो ये एंगल हमारा है 75 एंड दिस इज also 75. अगर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, दिस एंगल एंड दिस एंगल, अब ये वाला तो हमें पता ही नहीं, इसको ये वर्टिकली अपोजिट होके 75 आएगा. अगर इनका सम 180 आता है तो ये पैरेलल है, बट नो, दिस इज नॉट 180, सो दिस इज आल्सो नॉट पैरेलल. ठीक है, सो पहले आप एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल्स की वैल्यू निकाल लोगे. जैसे हमें यहाँ ये वाला 75 तो पता था, लेकिन ये नहीं पता था, इसलिए हमने वर्टिकली अपोजिट से इसको निकाला, फिर सम निकाल के देखा. अगर 180 डिग्री आ गया तो वो पैरेलल है, अदरवाइज नो. सो हियर वी आर ओवर विद दिस चैप्टर. स्टूडेंट्स, डू कंप्लीट योर नोटबुक्स विद चैप्टर नंबर 5 so that we can start with the next chapter. Thank you.